Okay. Now we okay. A workshop is a way of renting an audience and making sure you are communicating what you think you are communicating. It's so easy as a young writer to think you are being very clear when in fact you haven't. Welcome to the world of Infovertic, a world that delivers power and opportunity. Welcome to the Infovertic family. Now, I would like to welcome our honorable chief guest, CEO, CMO, CHRO, and all the dignitaries present here for Infovertic Private Limited workshop event. We have one dignitary present with us. He is CHRO of our company. His name is Rajiv Gupta, sir. Yes, ma'am. Very good evening, everyone. And good evening to all, everyone. Myself, Yes, Pankti, yes, ma'am. okay. Myself, Pankti Anand, as an educational counselor in Infovertic Private Limited, as I'm host of today's workshop event. Now, I would like to tell you about our company. Infovertic provides the best in class digital marketing services with a strong focus on user experience. Our technology extends beyond mobile, the web service, integration, and strategies. We will help you from buying your domain to making your website. Our top mobile app developers are dedicated to developing custom softwares and mobile application tailored to your needs 100%. Here's everything we built is for you and in partnership with you. So think of it as the growth of our company and as a company as a whole. We make skillful youth and we give comprehensive internship with training programs. We have our program guidelines that are based on the concept of study, performance, practicing, implementation, accomplishment, and we are giving them practical training also. Infovertic Private Limited welcome young minds from all fields such as fresher, graduates, UGPG students, MBA, PGDM students, and passed out technical students, freelancer students, and professional from many sectors of education for comprehensive internship with training programs where the candidates will be learning on live projects, online administrative, manual work, assignments, and tasks with practical operational performance and business orientation. The candidates will get opportunities to work with a professional qualified team and share the same workplace as nowadays in a corporate environment. As per the guidelines of ISO under Infovertic Private Limited, certification with quality management system ISO are recognized by international ISO number IQSC 20221027. Let's start today's workshop. Today's workshop speaker is Yashika Chauhan, and we have co-speaker Aprajita, Aprajita Mishra, ma'am. Yashika, ma'am, are you here? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening, Yashika, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, Pankti, ma'am.
A very warm good evening to the seniors, higher dignitaries, and all the participants who are present in this workshop. My name is Yashika Chauhan. I'm a BBA graduate and currently I'm pursuing MBA in Financial Analysis from GGS IPU University School of Management Studies. So, for today, I'm your English speaker and I am here to discuss with you on the topic how to crack any interview. And if you have any doubt regarding this, then we will have a doubt session for 10 minutes at the end of the session. Okay, participants? So, let's start. Okay, so a journal question for you all. How many of you have done graduation and planning for masters? Please raise your hand. Okay, cool. Then this workshop will be helpful for you guys. And I guess the remaining ones are ready for the corporate world and want to do a job. Next slide, sir. Okay, so for all of you, the workshop will give you some useful insights. Usually we all have faced problems while we are preparing for the interview or while we are in the interview. We get stuck, we mumble, and we get nervous. So today I have some tips for you guys as shown in this slide, which will be helpful for you. So next slide, sir. So the very first and the most important point is research of the company. So, this is the very basic information you must know, like what the company is about, what is the mission and the vision of the company, what they have achieved till now, and what are the recent projects. This will help you knowing the company better and give you the better insights about what do you want and what you are seeking from the job. So you should know these basic information, and it's not necessary for you to have a in-depth knowledge about the company, but you should know the basics and basics for your knowledge and for your clarity. Next slide. Now the second one comes is to analyze the job description. This is a very important step. One should do it before sitting in the interview. Now the job description can be divided into two parts. What is the general purpose of the job and what is the specific purpose of the job? You should have knowledge of both. So the general purpose of the job description consists of job title, location, summary of the job, and who are reporting to, and what are your duties. In specific purpose of job description, there is a detailed duties and detailed responsibilities that you will be doing, and it consists of your subtask and how the work is to be done and how is the work is to be performed, what you have to do in it. Then there are your the essential functions that you will be doing in your job, and you must know these as these will be followed by you. Next slide. The third is to stick to the basics. Now, in job interviews or B school interviews, there comes the point where the question arises what you have to prepare for it. For that, there is a simple solution. If you are a student of finance, then you should know what is accounting and how it is done. You should know the basic knowledge of your domain. If you are a student of HR, then you should know what is the recruitment process, how the employees are hired, and what all functions are performed by HR. And if your domain is marketing, then you should know the difference between sales and marketing, how the advertisement and promotion are done, how to increase the sales of the company, and so on. So these were just few examples that one should know about their domain, and the basic concepts should be clear. One should know the application about it, and what he or she has studied. We should know how it is to be applied in practical world. So who are from finance background? Can you raise your hand? Okay, so I have a question for you all. Let's see what you know about your domain. And if you are from another domain and you know the answer, then you can unmute yourself and answer me. So the question is, what are the 3 golden rules of accounting? Can you answer? Debit what comes in, credit what goes out. This is personal. Okay, correct. Debit all expenses and losses, credit all income and gains. This is nominal. Am I Yes. right, ma'am?
Yes. Yeah, and last one is real. Mm, sorry, ma'am, I forgot. I think. Okay, no issues. Anyone? Anyone else who can answer it? Debit the receiver and credit the giver. Yes. Yeah, this is real. Okay, guys. The answer is debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out, and debit all expenses, credit all incomes. You answered well. So the next question is three financial statements. What are the three financial statements? Anyone? Trading account, loss account, balance sheet. Please, one at a time. Trading account, P&L account, and balance sheet. Okay, so there is cash flow statement also. But yes, these are the three main statements. Okay, so marketing people. Question for you. What is the difference between consumer and customer? Can you answer? Can I answer? I am not from marketing domain though. Yes, yes, you can. No problem. Consumer is someone who like it need not be the end user, retail user, whereas customer is the one who is purchasing from a retail, uh, we can say retail shop or someone, but even a person who's purchasing raw materials or semi-finished goods is supposed to be a consumer. But if a person is purchasing goods from a retail shop, the end product, if a person is purchasing, that person is known as a customer. Okay, so the answer is customer is one who is purchasing the goods, and consumer is the one who is the end user of that of the goods and services. Like this is the simple answer. Well done, Jevika. Okay, so for HRs, what are the various roles of HR manager? Anyone? Anyone want to answer it? Okay, I'll proceed. So the answer is there are various roles: recruiting and hiring, training and development, employer-employee relation, maintaining company culture, managing employees' benefits, creating safe workplace, and many more. You should know at least five. So, like these were the basic questions you should all know about your domain, and now you know where you all stand. So, please be prepared for it. So, coming to the next point, so next slide. Now, to sit in the interview, one should prepare for the test. These tests can be written test, aptitude test, psychometric test, and group discussion. Because many companies or B schools have the criteria. Firstly, they take the test and grade you on that basis and select the ones who have performed well. For example, for MBA there is CAT, MAT, SNAP, GMAT, and many more. For MNCs they have aptitude test, whose which format is similar to the CAT test. In these tests there are mostly three sessions that are English, logical reasoning or data analysis, and quants, which is your maths. And coming to the aptitude test, now let's talk. These were about the aptitude test. Now let's talk about the psychometric test. It is a test that is designed to show someone's personality, mental ability, opinions, and etc. That is often used by the companies. They decide whether or not to employ someone.
And about group discussion, it is a comprehensive technique to judge the suitability of individual, and generally they are followed by admission, scholarship, jobs, and etc. So they overall rate your personality, thoughts, and feelings, behavior of an individual in a group. A topic is presented to the group members for discussion, and they are graded on that basis. The interviewer is there; he or she will give you few minutes to jot down your points, and then the person who starts and the person who summarizes, usually they have a plus point. And you also have a time limit. It depends upon the interviewer and the number of participants. It can be 10 minutes, 20 minutes, or half an hour. Totally depends upon the interviewer. Next slide. So the next is prepare for potential interview questions, like tell me about yourself, describe who you are. Now who will answer this question? Can you answer it? Anyone from the meet? Please be interactive. Should I take a random name or you will volunteer? Ma'am, all question you have you in one. Like, tell me about yourself. Like, what will you answer if I'm the interviewer and I'm asking, tell me about yourself, describe who you are? Can I speak, ma'am? Yes, yes, sure. Okay, so I'm Jivika Agarwal. I'm from Gangtok, Sikkim. Currently, I'm pursuing my undergraduation in BSc Economics Honors from Sheraton College, Kolkata. And I have a keen interest in finance. I am looking forward to enhance my financial and analytical skills, and hence I am looking and wanting to work for an experience in finance domain. Okay, Jivika, that was impressive. So, in these questions, you have to introduce yourself, tell them about your qualifications, your experience, your hobbies, and interest. Okay, so then mostly the interviewer asks, why should we hire you? Can you answer it? Like, what will you answer them? Ma'am, can I answer? Yes, yes. Ma'am, I have skills and experience to do the job and deliver great results. Yes, okay. So here, what you tell them is your strength and how do you stand apart from other candidates. Like this is a very basic answer, and you should answer in that way. Okay, so if asked why do you want this job, then what you will answer? Ma'am, can I? Yes, yes. I am fresher for this role. I have no experience about what is work, and what is task you give me. But I have a only book knowledge, and I want a practical knowledge. That's why I want to this job for practical knowledge uh, and my future achievements. Yes, you can answer that way, but that will show you that you are not confident about yourself, about your skills. So please, if someone asks you, mention your skills, tell them how these skills matches your job description, and that's why you are like the best for that job. Okay. So It means, ma'am, a courses like GST, Tally, like yes, that, yes, you can mention that. or Python and all. Yes. Yeah. Okay. Okay, so the next question, which is most asked question, where do you see yourself in coming years or long term, short term goals? So in here, you have to tell them that you have a clear vision of where do you see yourself in future,
mention your goals and how you are going to achieve them. You can tell them that you see yourself learning and growing with every experience you have, and you see yourself responsible and one who grabs the and that you are the one who grabs the opportunities and makes the best out of it. Next slide, sir. So, punctuality is must. If you are late, then you are rejected. Obviously, there is no chance they will entertain this behavior of yours. For this, you should ensure that you are reaching the location 30 minutes before, as this leaves a very negative remark on you. And the interview day is the most important day in your life, and I guess you will agree with me on this. And on this day you will make sure that things lands up properly as you have planned, so be punctual. Next slide, sir. Now comes the next point, which is stay focused and be clear. So here what you can do is listen carefully what the interviewer is saying, and have a eye contact, have a you have to connect with them, you have to you should be clear about about your thoughts, and there should be clarity in your speech. You should always have confidence, as confidence is the key, and you will not mumble if you have faith in yourself and you have a positive mindset. If you do not know the answer, please be clear and say, I don't know it. Be honest about it and don't waste the interviewer's time. Next slide, sir. The next is maintain a good body language. Sit up straight, and you should always have a smile on your face. Or, as I mentioned, make a eye contact and show that you are confident and you're not feeling nervous. Don't sit in a laid back position. You should always be attentive, look attentive, as maintaining a good body language will enhance your personality and you will look more professional. So mostly the interviewer is able to find out whether you are attentive or nervous within few minutes. So you should always take care of this. Next slide, sir. So you are going for a job interview or any interview. So you should always be professional, dress up smart, groom yourself, and be in formals. Now the question arises: what are formals? What colors are preferable? So, be it male or female candidate, this is applicable for all. Always wear a light and dark combination of formal shirt and trouser. If you are wearing white shirt, then pair it with black or blue or dark gray trouser. If you are wearing any dark color shirt, then pair it with light color trouser. Prefer not to wear black color shirt, as most of the times it is not considered formal. So coming on the grooming part, for males candidate, your hair should be properly trimmed, no spikes, no shabby looks, and for girls your hair should be neatly tied up, no open hair, whether you can make a bun or a ponytail, no hair on your face, and never lose your open hair, as I mentioned. And if you want to be more professional, then wear a coat or a tie. This will give you a better look. So coming to the next point, never be over friendly with the interviewer, and do not use any casual slangs or language we use with our families or friends. This will not look good. And avoid the statements on race, politics, religion, because this might lead the interview in other direction, and we don't want that. Be polite and humble. Never raise your voice towards the interview. Always speak softly. Next slide, sir. Then the last point is follow the interviewer's lead. Observe how the interviewer is talking and observe their behavior. Then speak your next sentence according to that. If you will listen to the interviewer carefully, then it will show that you are a good listener and you will adapt the company's environment easily. And if you have any queries related to the job or company, then you can always ask the relevant questions which are related to your job, department, and duties and responsibilities, and avoid any random questions like, for example,
Suppose if you are fresher, then you cannot negotiate on your salary because you have no prior experience and you cannot demand much. So these were some tips, and I have some personal tips for you guys. Usually, what I do when I have an interview, I maintain a notebook or a diary with all the questions that can be asked, or the most frequently asked questions, and also the basic questions of my domain. Secondly, I for to boost my confidence, I usually practice my speaking skills in front of the mirror. This gives me confidence, and you can always practice that. Lastly, you should know what's going around and be active so that you can enhance your knowledge, attend the workshops, seminars, webinars, do the certification course. This will help you in building your resume, and read newspapers so that you know about current affairs. So these were some tips. I hope this will be helpful for you, and we will take the doubt sessions in last 10 minutes. Now handing over to Pankti ma'am. Thank you, Yashika ma'am. Shubhangi ma'am, are you here? Yes, ma'am. Very good evening, Shubhangi ma'am. Shubhangi ma'am is a speaker for tonight for Hindi. Shubhangi ma'am, over to you. Thank you, Bhakti ma'am and Yashika ma'am. A very warm good evening to the seniors, high dignitaries, and all the participants who are present in this workshop. My name is Shubhangi Kapoor. I am a lawyer by profession, qualified CS intermediate level, and expert in interpretation of laws, and also have a certification of patent drafting for beginners from IIT Madras. So, for today, I am your Hindi speaker, and I am here to discuss with you on the topic how to crack an interview, and I'll be sharing with you a few tips on how to face an interview effectively. And if you have any doubt regarding this, then we will have a doubt session for 10 minutes at the end of the session. Okay, participants, so let's start our today's session. Sir, first slide. Okay, sir. जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कुछ टिप्स यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको एक बारी पढ़कर बताती हूँ, जो कि है रिसर्च ऑफ द कंपनी, बी प्रोफेशनल, एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन, prepare for potential interview questions, stick to the basics, be punctual, follow the interviewer's lead, stay focused and clear, participate for the test. It is not visible to me. Maintain good body language. Okay. इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सर. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च द कंपनी. रिसर्च द कंपनी में सबसे पहले लिखा हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, विजन, मिशन, की अचीवमेंट, रीसेंट प्रोजेक्ट्स. तो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी में हम जो है सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि हमारा मेन सोर्स होगा इंफॉर्मेशन का. और उसके ऊपर आई होप आप सभी ने अपनी आप डायरी और पेन लेकर बैठे हैं, सो दैट मैं जो शेयर करूंगी आप वो नोट डाउन कर सकें. बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी की आपको मेन सोर्स जो है वो वेबसाइट जो होगी कंपनी की उससे मिलेगा. एंड जितने भी कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आप अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, जिसका भी माइक खुला हुआ है. यस. जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की होगी कंपनी की मेन वेबसाइट पर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उन सभी को आपको जो है जॉट डाउन करना है अपनी डायरी में. और उसके बाद कंपनी के विजन क्या है, मिशन क्या है, उसकी की अचीवमेंट्स क्या है, रीसेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये सब आप जो है अपने नोटबुक में राइट करेंगे. और उसके बाद सबसे पहले आप जो है अपने जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनको आप इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप पूरे पैराग्राफ्स तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं तो पूरे पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं, और उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं कि कंपनी ने अब तक क्या किया, उसकी क्या की अचीवमेंट्स हैं, उसके विजन मिशंस क्या है, किस चीज़ में वो प्रोडक्ट या सर्विस में वो डील कर रही है, तो उसे आप इस तरीके से लिखेंगे एक समरी की तरह,
जो कि जो जब आप उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाएँ, तो आप वहाँ पर आप बिल्कुल भी वहाँ पर अटके नहीं और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, समराइज़्ड फॉर्म में उसे बता सकें। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनालाइज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, जब आप अपनी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद वहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पे ही जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है। तो जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन अपनी जो है देखेंगे, तो उसमें आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देखेंगे कि ये सब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि मुझे उस कंपनी में जाकर करनी होंगी, राइट? तो जब आप वहाँ पर वो सब देखेंगे, तो आपको अपना जो रिज़्यूमे है वो इस हिसाब से बनाना है और इस तरीके से मैच करना है। क्यों? क्योंकि आजकल रिज़्यूमे बहुत ईज़िली एडिटेबल हैं और आप उसको उसी की प्रोफ़ाइल से मैच करके अपना रिज़्यूमे जो है बनाइए। और उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स टू जस्टिफाई now you are capable for achieving how you are capable for achieving this specifications। वही रिज्यूमे को अपने इस तरीके से डिज़ाइन करिए, वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो और आपके जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप अच्छे से देख कर जाइए कि उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें 2 टाइप के पर्पसेस होते हैं, जनरल पर्पस जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिक पर्पस जॉब डिस्क्रिप्शन। जनरल पर्पस में आपका जॉब टाइटल आता है कि किस डेजिग्नेशन के अंदर आप काम करेंगे, जॉब लोकेशन कहाँ पर आपकी जॉब रहने वाली है, जॉब समरी कि उसमें क्या-क्या आपके काम आएँगे, किस तरीके से आएँगे, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होगा। किसको आप रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टेड टू जॉब ड्यूटीज़, वही आपकी क्या ड्यूटी होगी वहाँ पर जाकर। उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपकी और भी डिटेल्ड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई होंगी, सब टास्क्स, हाउ जॉब इज़ टू बी परफॉर्म, एसेंशियल फंक्शंस, ये सब लिखे हुए होंगे और ये सब आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगा और इसी को ध्यान रखते हुए ही आपको जो है अपना रिज्यूमे डिज़ाइन करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। स्टिक टू द बेसिक्स। सबसे पहले आप जब अपना इंटरव्यू तैयार करेंगे, आपने कंपनी की नॉलेज ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन आप जिस डोमेन के हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने ही होने चाहिए और अगर आप फ्रेशर या इंटर्न हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तब आप कॉन्फिडेंट वहाँ पर दिखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि इसी से वो एनालाइज़ करेंगे कि आप मतलब कितने नॉलेजेबल हैं उस टास्क के लिए। देन ब्रश अप द फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट एरियाज एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑन द कंपनी। वही बात कि अगर कोई एचआर डोमेन में फॉर एग्जांपल जा रहा है, तो उसको जो है उसके जो बेसिक एरियाज है कि एचआर पॉलिसी क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, तो ये सब उसे तैयार करके जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी उसका वर्क एरिया है, उसको वहाँ पर जब वो तैयार कर लेगा, उसके बाद उससे उसकी जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को उससे मैच करना होगा। द फंडामेंटल्स ऑफ द सब्जेक्ट एरियाज एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑन द कंपनी। सॉरी मेरे पीछे नॉइज़ेस बहुत है, इस वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो इस तरीके से जो उसकी एप्लीकेशंस है, वो आपको मिलानी होगी बैठकर। आपको अपने इंटरव्यू से 1 वीक पहले काम करना पड़ेगा अपने रिज्यूमे के ऊपर, तो उन्हीं सब में ये सब चीज़ें आती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। आजकल कंपनीज टेस्ट लेती हैं 3-4 टाइप के, उसके बाद जाके हमारी सिलेक्शन होती है। फर्स्ट आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में हमारे एमसीक्यूज होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मैचिंग हो गई, शॉर्ट आंसर्स हो गए, एस्से हो गए, ओरल वर्बल, ये सब चीज़ें हमारे रिटन टेस्ट में आती हैं। उसके बाद हमारे आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, न्यूमेरिकल स्किल्स आ जाती हैं। तो ये सब भी हमें जो है ऑनलाइन मेनली ऑनलाइन ही होता है, तो ये सब हमें जो है
कंपनी की वेबसाइट पे जाकर ये सब टेस्ट हमें देने होते हैं, जिसके वो मार्क्स हमें देते हैं और उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे हमें आगे अगला राउंड जो है हमारा क्लियर होता है। उसके बाद आते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, वो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी ट्रेट्स, एबिलिटीज और बिहेवियरल स्टाइल को मेजर करने का एक तरीका होता है, जिसमें सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज होती हैं। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट में आपका आ जाता है कि आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है और उसके बाद उस सिचुएशन को किस तरीके से आप संभालेंगे, क्या आपका उस पे आउटलुक होगा, वो आपको बताना होता है और जिससे वो जो इंटरव्यूअर है वो आपकी कैपेबिलिटी को जान पाता है। देन ग्रुप एक्सरसाइजेज, आपको ग्रुप एक्सरसाइजेज दी जाती हैं जो पूरी टीम की कोऑर्डिनेशन से आप करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा जीडी। जीडी में भी कई टाइप के ग्रुप डिस्कशंस में टॉपिक होते हैं अलग-अलग टाइप्स के, जैसे कि फैक्चुअल टॉपिक्स, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स, केस स्टडी बेस्ड टॉपिक्स, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। तो फैक्चुअल टॉपिक्स में हमारे जो है फैक्ट्स पे बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं, जो फैक्ट्स हो गए, किसी भी चीज़ का कोई फैक्ट जो हमारे सामने है कि ये तो कंक्रीट फैक्ट है, हाँ इट्स अ फैक्ट, तो उस टाइप का जो है ये टॉपिक होता है। देन हमारे आ जाते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जिसके बारे में ऑब्वियसली न्यूज़ बनती है और कंट्रोवर्सी होती है, वो होते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स जो कि किसी कॉन्सेप्ट पे, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग थ्योरीज या एचआरएम वर्सेस अदर टाइप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये होते हैं नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स। उसके बाद आते हैं हमारे केस स्टडी बेस्ड टॉपिक्स, जो कि केस स्टडी में हमें एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसके बाद उसका बेस्ट सोल्यूशन जो पूरा ग्रुप होता है उसको फाइंड करके देना होता है, तो वो होते हैं केस स्टडी बेस्ड टॉपिक। और जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन देता है या समझा पाता है वो वहाँ जीटी में सिलेक्ट हो जाता है। ऐसे ही सबसे मुश्किल ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आता है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में आपको बहुत ही लिमिटेड कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और ये सबसे मुश्किल जनरली होता है। तो इसमें आपको जैसे एक सिंगल वर्ड दे दिया गया ब्लू, या फिर कोई ऐसी इमेज या पिक्चर दे दी गई और इसी के फ्रेमवर्क में आपको कुछ ना कुछ बोलना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको वर्ड दिया गया है ब्लू, तो ब्लू से आप क्या समझते हैं? ब्लू कलर होता है, ब्लू ओशियन होता है, ब्लू अर्थ होती है। उसके बाद आपका दिमाग कहाँ जाएगा कि जब अर्थ ब्लू होती है तो अर्थ का कलर क्लाइमेट की वजह से चेंज हो रहा है, तो क्या ये अर्थ ब्लू आगे आने वाले सालों में रहेगी? तो इससे क्या हुआ, थोड़ी ही देर में आपका जो टॉपिक है आप उससे भटक गए। मतलब ब्लू से ये जो टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज पे चला गया। तो इंटरव्यूअर बस आपकी यही एबिलिटी देखता है कि कितनी देर तक आप उस स्पेसिफिक टॉपिक पर टिके रहते हैं। तो बस इसी टाइप के एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं। ये जनरली काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से कम दिए जाते हैं। बाकी केस स्टडी बेस्ड फैक्चुअल टॉपिक्स मोस्टली ज़्यादा चलते हैं। अगर इंटरव्यूअर को फंसाना है तब ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को देते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले आता है इसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी जितने भी लोग यहाँ पर हैं कि आपने कभी इंटरव्यू फेस किया है और अगर किसी ने करा है तो उसको किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया है? यस सर। Good afternoon, ma'am, and good afternoon, everybody. Good evening, sir. Sorry, good evening. So, on the focusing on my bachelor degree, मतलब bachelor degree में focus किए, so I'm pursuing PGDM, वो मैंने बताया किसमें किया है, data analytics. Then where internship I have done, मैंने relate to the job, मैंने जो relative है to the job, मैंने उससे related मैंने बताया है. ओके सर। तो सर ये आपने इंग्लिश में सब कुछ डिस्क्राइब करा था?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. I described everything in English only. ओके, तो सिर्फ आपका आपने इसमें अपनी बेसिक जो क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, वो इंक्लूड Like, करें। like first of all, I started with basic qualifications, starting from PGDM, then coming to BTech, and after that, I have mentioned each and every internship which I have done for the past 2 years. Sorry, 1 year, ओके, and okay, and that's it only. ओके सर, ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सबसे पहला था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में सबसे पहले आप अपना इंट्रो देंगे, जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स होंगी, आपका नाम होगा, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी। उसके बाद क्वालिफिकेशंस के बाद आप अपना एड्रेस बोलेंगे, उसके बाद अपना फैमिली बैकग्राउंड बोलेंगे और उसके बाद अपनी हॉबीज़ बोलेंगे। ये आप हॉबीज़ तक आप तब तक जाएँगे जब तक आपको इंटरव्यूअर इंटरप्ट नहीं कर देता। जैसे कि मेरा नाम ये है, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये हैं, मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, मेरी फैमिली में इतने लोग हैं और मेरी हॉबीज़ ये हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इंट्रो, एड्रेस, फैमिली, हॉबीज़ हो गई। अब इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा पकड़ता है हॉबीज़ पे। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ प्लीज़ रियल लिखिए। क्रिकेट लिखना है तो क्रिकेट लिखिए और उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। गार्डनिंग लिखना है, गार्डनिंग लिखिए। सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग बहुत कॉमन है। रीडिंग में आप फिर फँसाए जाते हैं। रीडिंग में अगर आप रियली रीडिंग करते हैं तभी बोलिए, वरना मत बोलिए। आप जो आपको अच्छा लगता है हॉबीज़ में आप वही बोलिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है। अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो प्लीज़ सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग इसकी जगह जो आप अभी असल में करते हैं वही बताइए। क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेट बोलिए। बैडमिंटन अच्छा लगता है, बैडमिंटन बोलिए। अगर इंटरव्यूअर को नॉलेज इतनी है कि वो और किसी एरिया से पूछ सकता है या बुक के लिए तो वो पूछता ही पूछता है। आप कहीं भी जाएँगे, कहीं भी इंटरव्यू फेस करेंगे, हॉबीज़ में अगर आप रीडिंग बुक्स बोलेंगे तो वो कहेंगे कि आप किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, अब तक आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, उस बुक की समरी क्या है, ये सब आपसे पूछते हैं। तो प्लीज़ बी माइंडफुल व्हाइल टेलिंग योर हॉबीज़ कि हॉबीज़ में होता क्या-क्या है। उसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब हू यू आर। तो डिस्क्राइब हू यू आर में आप बताएँगे कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, इस तरीके से नहीं, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेस इस तरीके से नहीं बताएँगे। आप बताएँगे आई हैव अ एजाइल माइंडसेट, आई एम रिजल्ट ड्रिवन, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम कोलैबोरेटिव। इस तरीके के वर्ड्स आप बोलेंगे जो कि इंटरव्यूअर के दिमाग पे बहुत गहरी छाप छोड़ेंगे। जैसे कि अजाइल माइंडसेट हो गया, आप रिजल्ट ड्रिवन हैं, इनिशिएटर हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कोलैबोरेटिव हैं। इस तरीके के वर्ड्स आप यहाँ पर बोलेंगे। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड आई हायर यू? वो पूछेंगे व्हाई शुड आई हायर यू? तो आप बोलेंगे आई हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस लिस्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। मेरे पास वो स्किल्स हैं, वो एक्सपीरियंस है जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में बताई गई है। ओवर द ईयर्स आई हैव एक्वायर्ड विच आई विल ब्रिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीज़ें मैंने ओवर द ईयर्स एक्वायर करी हैं और जो कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आऊँगा। तो इस तरीके से आपको जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर करना है, व्हाई शुड आई हायर यू? क्योंकि मेरी स्किल्स और एक्सपीरियंस इस जॉब डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहे हैं इसलिए। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू वांट दिस जॉब? तो व्हाई यू वांट दिस जॉब का सिंपल आंसर ये होगा, दिस रोल गिव्स मी अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन बोथ माय स्किल्स एंड पैशन। ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और जिनका आंसर आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। अपनी रिसर्च करिए, अपने ऊपर काम करिए और अपनी इंग्लिश स्किल्स को बढ़ाइए, उससे ये आपको आंसर्स मिल जाएंगे सो दैट ये आंसर्स और पर्सनलाइज्ड हो सकें। ओके, ये एक फॉर्मेट में बने होते हैं, तो आप पर्सनलाइज करके इनका आंसर दीजिए कि दिस रोल गिव्स मी अपॉर्चुनिटी टू कंबाइन बोथ माय स्किल्स एंड पैशन, कि ये मेरा पैशन भी है, जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ, और ये मेरी स्किल्स भी हैं। इस तरीके से आप बात करेंगे। उसके बाद आप बोलेंगे योरसेल्फ इन 5 इयर्स। आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो आई वांट टू सी माय सेल्फ इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन एंड वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ योर कंपनी।
मतलब मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे देखता हूँ। पोजीशन डिफाइन मत करिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंटरव्यूअर वहाँ तक आपको किस तरीके से आंकेगा। तो आप क्या बोलेंगे कि आई वांट टू सी माई सेल्फ इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन एंड वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ योर कंपनी। जब आप ये बोलेंगे तो उससे लगेगा कि आप लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस का जो है आंसर करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। देन आता है बी पंक्चुअल। प्लान योर रूट टू रीच 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम। ओके, ये बहुत एक ज़रूरी बात है जो काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी आप घर पर जो है सारी डिटेल्स जॉट डाउन करके गए हैं, कर ली हैं आपने, सारी जो है इन्फॉर्मेशन ले ली है और सारे कॉन्सेप्ट्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन अगर आप टाइम पे ही नहीं पहुँचे तो सब कुछ वहाँ पर फेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना रूट जो है इस तरीके से प्लान करिए कि आप 30 मिनट्स शेड्यूल टाइम से पहले पहुँचे, सो दैट आपको वहाँ का सिनेरियो पता लग सके। ऑब्वियसली जब आप किसी इंटरव्यू में जाने वाले होते हैं तो अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा होता है, केओटिक होता है, माइंड भी बिल्कुल जो है नर्वस होता है, नर्व्स भी आपकी काम नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर टेक रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करिए। स्वेटिंग हो रही है, उसे अच्छे से अपने आप को क्लीन अप करिए, अपने अपने आप को प्रेजेंटेबल रखने के लिए, और ड्रिंक वाटर। उसके बाद आप जो है वहाँ पर अपने जो आपको डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं कामली वो निकालिए, और वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट हैं या ऑफिस बॉय हैं उनसे पूछिए कि मेरा इतना टाइम तक मेरा जो इंटरव्यू था वो शेड्यूल था। वहाँ पर कामली उनसे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेंज करिए, सब कुछ अपना अरेंज वगैरह करके अपना फ़ोन जो है साइलेंट पे करिए। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत क्रिटिकल होती हैं लास्ट 15 टू 30 मिनट्स बिफोर द इंटरव्यू, सो दैट आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ सकें और अपने इंटरव्यू को अच्छे से अच्छा फेस कर सकें। Another reaching before the time will also help you to get relaxed before the interview। वही बात आ गई कि आप रिलैक्स्ड हो जाएंगे, आपकी नर्व्स जो है काम हो जाएंगी, और कोई भी इंटरव्यूअर एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप इंटरव्यू पे ही लेट हैं तो सिंपली आपका ये इंप्रेशन जा रहा है कि आप जो है आगे भी बिल्कुल पंक्चुअल नहीं होंगे, और आपको आप सुटेबल ही नहीं हैं इस वर्क के लिए, इस जॉब के लिए। Okay, moving on to the next slide, sir. Stay focused and clear. Listen carefully to everything the interviewer is saying. Obviously, आप इंटरव्यू की बात ध्यान से सुनिए और उनकी बातों को सुनकर पता लगाइए कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। Then match their pace of talking to better connect with them. जब आप उनके पेस से मैच करेंगे, अगर वो चाहते हैं, अगर वो किसी रश में हैं और जल्दी-जल्दी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप उसी तरीके से आंसर करेंगे। अपने जो मेन पॉइंट्स हैं वो वहाँ पर बताएँगे, सारा बताने नहीं बैठेंगे, और अगर वो रिलैक्स्ड वे में इंटरव्यू ले रहे हैं, तब आप थोड़ा-सा इलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाती हैं। उस प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाइए वहाँ पे कि अगर इंटरव्यूअर इज़ इन अ हरी, कि वो इंटरव्यू लेके कहीं जा रहा है और या जाने वाला है, उसकी नेक्स्ट मीटिंग है, तो आप जो है अब अपने मेन पॉइंट्स जो हैं पहले ही दिमाग में रखिए कि सर मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं सेल्फ ड्रिवन हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैंने ये किया है, फटाफट उनको बता दीजिए, सो दैट इट लीव्स अ इम्प्रेशन ऑन देम। देन हमारा आता है मेंटेन क्लैरिटी ऑफ स्पीच। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कई टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे आते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स में जैसे आते हैं कल्चरल बैरियर्स हो गए, हमारे स्पीच डिसऑर्डर्स हो गए, कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज हो गए, और कम्युनिकेशन स्टाइल्स अलग-अलग हो गए, प्रोनाउंसिएशन अलग हो गई, और कभी-कभार ये हो जाता है कि हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते। ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। तो ये सब जितने भी बैरियर्स हैं, इन सबको ओवरकम करके हमें इंटरव्यू को फेस करना होगा। तो सबसे पहले मैं आऊँगी स्पीच डिसऑर्डर्स पे, जो कि स्टैमरिंग होती है या हकलाना, तुतलाना, ये सब चीज़ें होती हैं।
तो वो आप जो है थेरेपी लेके जो है उसको दूर कर सकते हैं। और कोई भी स्टैमरिंग जो करता है उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो दूर हो जाती है। कोई इसमें बिग इश्यू नहीं है। जिसका एक एग्ज़ाम्पल मैं बहुत बड़ा दूँगी, ऋतिक रोशन। ही यूज्ड टू बी अ स्टैमरर और वो जो है अब उनकी बोली से बिल्कुल पता नहीं लगता है कि वो कभी स्टैमरिंग करते भी थे। तो इस टाइप के स्पीच डिसऑर्डर्स हैं जिस पर अपने आप को खुद ही वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कल्चरल डिफरेंसेस एंड लैंग्वेज। सबकी अलग-अलग भाषाएँ हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड जो है देश है और वहाँ सबकी अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सली यूज़ होती है और इसका फ़ायदा हमें ये है कि हम इसे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मोस्टली लोग इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा काम करना चाहिए अगर हम इंटरव्यू कहीं पर देने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ जो हैं अनटिल अनलेस वो बाहर हो, फ्रांस हो, रशिया हो या चाइना, जापान हो, उसके अलावा मोस्टली कंपनीज़ जो है इंग्लिश को एक्सेप्ट करती हैं। और आप अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए, राइटिंग स्किल्स को बढ़ाइए और ये सिर्फ़ प्रैक्टिस करके ही आ सकता है। अपने सामने किसी को बिठाइए, अपने भाई को बिठाइए, अपनी बहन को बिठाइए, फिज़िकली उनसे बात करिए कि मैं जो हूँ मतलब इंग्लिश में कन्वर्स करने की कोशिश करिए। मैं ऐसे-ऐसे करके मैं बोल रही हूँ, मुझे सुनो। तो इससे वो आपको आपकी गलतियाँ बताएँगे कि हाँ, तुम्हारी ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये गलती है। तो इससे आपकी जो है स्लर्ड स्पीच या किसी भी प्रकार की स्पीच जो है उसमें क्लैरिटी आपको मिलेगी। कोई किसी प्रकार का अटकाव है, कोई प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो वो आपको सामने से बताएँगे। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन बैरियर्स होती हैं जो कि क्लैरिटी ऑफ स्पीच को लाने में प्रॉब्लम करते हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है और अपनी इंग्लिश जो है बहुत इम्प्रूव करके जाइए। प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर्ड होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस का एक सबसे पहला जो स्टेप है, आप अपनी प्रैक्टिस पूरी रखिए कॉन्सेप्ट्स की और कंपनी के बैकग्राउंड की, इन सब चीज़ों की, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंट रहिए कि ये मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मुझे क्लियर हैं और ये मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो इससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑटोमेटिकली आएगी। देन हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पर जाकर नोटिस्ड होना है और भी लोग वहाँ पर आएँगे इंटरव्यू देने या आपके साथ बैठे होंगे। तो आपको एक इस तरीके का कैंडिडेट बन के जाना है जो कि इंटरव्यूअर के दिमाग पर जो है एक छाप छोड़ के जाए। तो वो कैसे होगा? आपकी बेटर प्रिपरेशन से, आपकी बेटर प्रैक्टिस से। अवॉइड बम्बलिंग। आप कहीं अटकिए नहीं। अपना सेंटेंस फॉर्म करने से पहले अपने दिमाग में उस सेंटेंस को सोचिए। कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात। ऑब्वियसली जब आप नर्वस होते हैं तो आप अटकते हैं। वो इंटरव्यूअर भी भाँप लेते हैं, वो देख लेते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर इंटरव्यूअर आपको हेल्प करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट करने के लिए ही बैठा है। प्लीज़ डोंट गिव देम रीज़न्स टू गेट रिजेक्टेड। आप रीज़न मत दीजिए उन्हें। आप अपने जो पीछे का वर्क है, कॉन्सेप्चुअल वर्क है और आपका रिज़्यूमे का वर्क है, आपके उस कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखिए, तो आप कभी भी रिजेक्ट नहीं हो पाएँगे। इफ यू डू नॉट नो द आंसर, बी ऑनेस्ट। आपको आंसर नहीं पता, आप जो है ऑनेस्ट रहिए कि सर, सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, या मैं आपको अगली बार इसका आंसर दे दूँगा। वो समझ जाएँगे कि आपको ये आंसर नहीं आता। और ऐसा नहीं है, अगर आपको ये आंसर नहीं आता तो इंटरव्यूअर हमेशा, अगर किसी ने यहाँ पर इंटरव्यू फेस किया होगा तो वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। वो पूछते हैं कि ओके, इफ यू डोंट नो दिस, आंसर मी दिस, आंसर मी दिस। 2 से 3 क्वेश्चन वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछते हैं। वो एक क्वेश्चन पे कभी नहीं छोड़ते कि नहीं, अगर आपको नहीं आया तो नो, 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 यू गॉट रिजेक्टेड। नो, वो ऐसा कभी भी नहीं करते। वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं और अगर आप वो 2 से 3 का आंसर दे देते हैं, तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएँ। ओके देन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज। ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं
तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके की रखनी पड़ेगी और सिट अपराइट एंड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। इसका मतलब यही है कि आप सीधे बैठिए, एक अदब से बैठिए, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। आप अपना कीप अ स्माइल ऑन योर फेस का मतलब है कि अगर आप स्माइल नहीं भी रख पा रहे फेस पे, तो अपना फेस के एक्सप्रेशंस प्लेजेंट रखिए सो दैट कोई दूसरा जो आपको देख रहा है, वो आपको देखते हुए उसका मुँह ना बने, वो उसको आप ये प्रोजेक्ट ना करें, ये तो बेचारा दुखियारा आया है, या आप इतने उदास होकर वहाँ ना बैठें, क्योंकि आपकी उदासी का उन्हें कुछ भी नहीं करना वहाँ पे। तो इस वजह से स्माइल रखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं रख सकते तो कीप अ प्लेजेंट फेस फॉर अदर्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर प्लीज़ प्रोजेक्ट मत करिए अपने फेस के द्वारा। देन मेक अ आई कॉन्टैक्ट व्हिच शोज़ योर कॉन्फिडेंस। तो जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मुझे ऐसा होता था, मुझे जब मैंने अपनी मीट्स करी थी, तो मैं आई कांटेक्ट नहीं बना पाती थी, बट ग्रेजुअली आई स्टार्टेड मेकिंग आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट से आई गेन्ड कॉन्फिडेंस ओवर द पर्सन, जो उसके दिमाग में चल रहा था, मुझे पता है। और मैं जो हूँ उसे ओवर पावर करने में जो है बहुत हेल्प करी मुझे इस चीज़ ने, कि आप आई कांटेक्ट उससे मेंटेन करें। पहले-पहले ऐसा लगता है जब आप फर्स्टली आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करें किसी से भी, कोई घर का बंदा हो, कोई बाहर का बंदा हो, किसी से आप सामान लेने जा रहे हो, बाहर शॉपकीपर से, किसी से भी मेंटेन आई कांटेक्ट, प्रैक्टिस इट डेली ऑन अ डेली बेसिस, प्रैक्टिस इट। कि आई कांटेक्ट से सबसे पहले फ़ायदा हमें ये होता है कि जो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है टू मेक अ आई कॉन्टैक्ट, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। डोंट स्लाउच इन योर सीट। आप प्लीज़ जहाँ पर जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। हाँ, अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे वहाँ पर लगते हैं, तो आप अपनी बैक को जो है थोड़ा-सा लीन करके रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट इन द सेंस कि आराम से पीछे करके और उसके बाद फिर नॉर्मल अपनी पोज़ीशन में आ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ स्लाउच मत होइए, वहाँ पर टेढ़े-मेढ़े मत होइए, अपने पैर ऊपर मत करिए जहाँ पर भी जिस भी सीट पर आप बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। डोंट सिट इन लेड बैक पोज़ीशंस, वही बात है कि आप जो है कोई भी लेड बैक पोज़ीशन में ना बैठें। बिल्कुल जैसे रेस्ट पोज़ीशन में या किसी भी पोज़ीशन में, आई होप आप समझ रहे होंगे, उन पोज़ीशंस में आप ना बैठें। 33% ऑफ एम्प्लॉइज़ फिगर आउट विदिन द फर्स्ट 90 सेकंड्स ऑफ एन इंटरव्यू। बिल्कुल। और आप जब आप जा रहे हैं, तो आप इस तरीके की तैयारी रखिए कि आपका इंट्रो स्ट्रॉन्ग हो, और 33% एम्प्लॉइज़ को ये पता लग जाता है फर्स्ट 90 सेकंड्स में कि ये कैंडिडेट हमारे काम का है या नहीं। तो प्लीज़ अपनी तैयारी जो है पूरी रखिए। जितना आप तैयार होंगे इंटरव्यू के लिए, उतना ही आपके लिए ईज़ी होगा इंटरव्यू को क्रैक करना। ओके, आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे मेरी बात। प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट स्लाइड सर। बी प्रोफेशनल। ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें आपको अंदर से दिखानी होगी। तो बी प्रोफेशनल। आप जो है अपने जो कपड़े हैं, सबसे पहले तो उससे ही दर्शाएँगे कि आप जो है प्रोफेशनल हैं। ऑब्वियसली आजकल सभी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ड्रेसेस सेम ही हैं, शर्ट है, ट्राउज़र्स हैं, वही सब पहन के जाते हैं। और अगर कोई गर्ल ऐसी है कि वो ट्राउज़र या शर्ट नहीं पहन सकती है, तो वो कुर्ती पहन के जाएगी सिंपली। कुर्ती एंड पजामी उसके लिए प्रेफ़रेबल होती है। हाँ, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, तो साड़ी प्रेफ़रेबल होती है। तो ये सब अलग-अलग टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं, जिनके लिए अलग-अलग ड्रेस कोड्स होते हैं, और उनमें आपको जाना पड़ता है। कॉम्बिनेशंस का फिर आप ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसी चमकीली कलर की, भड़कीली कलर की चीज़ें नहीं पहननी चाहिए आपको। कोई भी ऐसी शिमरी चीज़ आपको नहीं पहननी चाहिए जो आँखों को देख के आँखों में चुभे। तो आपको सारी चीज़ें न्यूडिश रखनी चाहिए। टोन्स उसके वार्मर रखने चाहिए, जैसे कि व्हाइट, ऑफ व्हाइट्स और ब्लूज़
और क्रीमिश ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए आपको, ऐसे कपड़े रखने चाहिए एंड कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखें कि लाइट के साथ डार्क, डार्क के साथ लाइट, मतलब अगर आप लाइट शर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ डार्क पैंट पहनिए, अगर आप डार्क शर्ट पहन रहे हैं उसके साथ लाइट पैंट पहनिए, लेकिन आपको वो दोनों चीज़ें वार्मर टोन्स में ही रखनी होंगी। हरा, पीला, लाल ऐसे कलर्स आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, दे आर नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ऑब्वियसली बॉयज़ के जो बॉयज़ भी ग्रूम्ड होने चाहिए, गर्ल्स भी, तो बॉयज़ के नेल्स कटे होने चाहिए, गर्ल्स के कटे होने चाहिए। बॉयज़ के जो बाल हैं वो अपने जो मीडियम लेंथ होती है उसमें होने चाहिए। गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि नेल पॉलिश जो आप लगाते हैं, अगर आपने सारा अटायर सही कर लिया और नेल पेंट्स आपने जो है इस तरीके के लगाए हैं जो कि बिल्कुल उससे जो है मेल नहीं खाते, हरा, पीला, लाल ऐसे तरीके के लगा लिए, तो इवन व्हाइट्स आर नॉट अलाउड। सो प्लीज़ उन्हें अपने स्किन कलर में ही रहने दें और किसी भी प्रकार के नेल पेंट्स अगर आप अवॉइड करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। और फेक नेल्स भी ना लगा के जाएँ, वो भी बहुत बेकार इंप्रेशन डालते हैं अनटिल अनलेस आपका कोई अच्छे आपने नेल्स लगाए हों नॉर्मल लेंथ के। तो ये सब आपको चीज़ ध्यान रखनी है। गर्ल्स जो हैं हील्स बहुत ज़्यादा ना पहने, ब्लॉक हील्स पहने या फ्लैट्स पहने तो वो प्रेफरेबल होता है इंटरव्यूज़ के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि शिमरी हो, इयररिंग्स आपको लंबे नहीं रखने हैं, सिंपल स्टड्स आप रखिए। वो ये सब चीज़ें इन सब उसमें ड्रेस कोड्स में आती हैं, तो इन सब का आप ख़ास ध्यान रखें ताकि आप एक प्रोफेशनल लगें, नोबल लगें। उसके बाद डोंट एक्ट ओवर फ्रेंडली। डोंट एक्ट ओवर फ्रेंडली में आपको ना ही फेलो कैंडिडेट से जो कि वहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, ऑफिस बॉयज़ से, रिसेप्शनिस्ट से किसी भी तरीके से ओवर फ्रेंडली नहीं होना है, क्योंकि आप अपना वहाँ पर गोल अचीव करने गए हैं इंटरव्यू का। आप किसी भी तरीके से वहाँ पर ओवर फ्रेंडलीनेस अपनी नहीं दिखाएँगे, किसी को फालतू स्माइल पास करके नहीं, जैसे कि और पर्पसेस से जो है लोग स्माइल पास करते हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और कॉन्टेक्ट्स में, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर नहीं करेंगे। इससे आपका ही चीज़ शो होगी कि दैट दिस कैंडिडेट इज़ नॉट एट ऑल फोकस्ड। और आजकल जो है रिसेप्शन पर कौन बैठा है आपको कुछ नहीं पता, बोर्ड के मेंबर्स भी आकर रिसेप्शन पर बैठ जाते हैं सो दैट दे कैन ऑब्जर्व यू कि कैंडिडेट कैसा है, उसका कंडक्ट कैसा है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप ध्यान रखिए। डोंट यूज़ कैजुअल स्लैंग्स, अबे तबे, अरे यार नहीं करना। इवन अगर इंटरव्यूअर आपसे करता भी है तब भी आपको नहीं करना, बिकॉज़ इंटरव्यूअर इज़ इंटरव्यूअर और आप जो है वहाँ पर जॉब को लेने गए हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक रिस्पेक्टेबल मैनर में उनसे बात वहाँ पर करनी है। देन अवॉइड स्टेटमेंट्स ऑन रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स। बिल्कुल आप कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देंगे जो कि आपके ऊपर बैकफायर करे। कोई भी रेस से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, आप सिंपली ये आंसर करिए कि ऑल रेस एंड रिलीजन्स आर इक्वल टू मी। पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है तो बोलिए कि आई डोंट फॉलो पॉलिटिक्स मच। और अगर आपको कोई नॉलेज है तो आप बोल सकते हैं, बट नॉट इन अ कंट्रोवर्शियल वे। इसमें मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि अगर जीडी में इस तरीके का कोई टॉपिक आपके पास आता है तो आप वहाँ पर आंसर करिए, लेकिन वो भी नेगेटिव वे में अवॉइड करिए। और यहाँ पर तो पूरी ही तरीके से आप अवॉइड करिए। सिंपली एक स्टेटमेंट दीजिए कि ऑल रेसेस एंड रिलीजन्स आर इक्वल टू मी। देन बी इन अ पोलाइट एंड फॉर्मल मैनर। सबसे वहाँ पर पोलाइट रहेंगे। अपने कोई आपके एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, एंगर इश्यूज़ है, वहाँ आप पूरी एनवायरनमेंट आपके लिए नई होगी, तो प्लीज़ आप वहाँ पर अपने एंगर आप अपना शो नहीं करेंगे या ओवर इमोशनल अपनी साइड शो नहीं करेंगे। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ रिप्लाई। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Any doubts if you have? If you are having any doubts, you can ask me. Yes, Atal. Good evening, ma'am. I have a question regarding the question like why should we hire you? Yes. Tell. So like in the question is that my question is that like we can map our map the
the like job description, like job responsibility on the basis of that, like we can map the description, job responsibility Hmm. with our like qualifications or like with our Yes, like yes. intern, Yes, and yes. on that, and like in order to prove myself that why we are the best candidate for you. Yes, 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 you can, but don't be repetitive much because you have already tell that thing in your intro. So don't be that repetitive. Just say the main points of those things. That's it. Ma'am, I have another question regarding the interview only. Yes, sir. Ma'am, like in the interview of the intro of the interview, can we like mention our strength or weakness? No, sir. No, sir. If an interviewer asks you that what are your strengths, what are your weaknesses, then only you will answer. And strengths में भी आप अपनी strengths तो जो हैं वो बताते ही हैं. Weakness में आप अपनी weaknesses ये नहीं बताएंगे कि that I'm emotional, I have anger issues. ये सब आप नहीं बताएंगे. आप बताएंगे कि उसमें भी एक तरीके की आपकी खूबियाँ होनी चाहिए. That I am a self critic और मैं ज़रूरत से ज़्यादा काम ले लेता हूँ. जितना मेरे से हैंडल होता है, तो इस तरीके की आपकी जो है आंसर्स होने चाहिए कि मैं सेल्फ क्रिटिक हूँ, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर लेता हूँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेता हूँ, अपने आप को ओवरबर्डन कर लेता हूँ। इस तरीके की आप वीकनेसेस बताएँगे और स्ट्रेंथ्स तो आप जो आपकी हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड वगैरह ये सब बता देंगे। तो इस तरीके की आप जो है अपनी वो सब बताएँगे आप। Am I clear to you? Yes, ma'am. Okay, sir. Okay. Shubhangi ma'am, adding one more point, कि mostly people interview ask you strength or weakness. So you can do one thing, like always give examples. Like if I'm saying I'm a disciplined person, give example how you are disciplined. And if you are saying one weakness, give example how you are weak, how this thing weakens you, and what all steps you are doing to recover that. Yes, yes, surely. Basically, elaborate your points. Yes. That is the whole point. Okay, so moving on to the next slide. Okay. Then follow the interviewer's lead. Follow the interviewer's lead in their way of talking and professional behavior. जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं, उसी की रिस्पॉन्स में आप बिहेव करिए और आप बोलिए. आराम से बोल रहे हैं, आराम से बोलिए. आपको तो आराम से ही बोलना है, आप तेज बोल ही नहीं सकते हैं, बट उनका जो पेस है, अगर वो हरिडली आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस तरीके से आप दीजिए. आराम से ले रहे हैं, आराम से दीजिए, सिंपली. इससे पता लगता है कि इट शोज यू लिसन वेल एंड अडेप्टिव कंपनीज एनवायरनमेंट. ऑब्वियसली जब आप अडेप्टिव हैं कंपनी के एनवायरनमेंट से, तभी आप जो है उनके पेस पर बात कर रहे हैं. If get a chance to ask a question, the relevant questions related to the job and department, avoid any random questions. Okay. तो इसमें अगर आप फ्रेशर और इंटर्न हैं तो आप अपनी ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप के बारे में पूछ सकते हैं. क्या आपके जॉब रोल्स होंगे और ये सब के बारे में पूछ सकते हैं. प्लीज़ डोंट आस्क एनी रैंडम क्वेश्चंस लाइक सर इस कंपनी में कैंटीन कहाँ पर है. प्लीज़ अवॉइड दीज रैंडम क्वेश्चंस. आप ये सब ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि आप वो सब फिगर आउट कर लेंगे. प्लीज़ ये सब छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो हैं उनसे ना पूछें ओवरवेल्म होके, क्योंकि जब कैंडिडेट को लगता है कि मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ तो वो ओवरवेल्म हो जाता है और कुछ सिली क्वेश्चंस जो है पुट अप कर देता है. तो ये सब आपको नहीं करना है. और जो आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं जॉब से रिलेटेड, ड्यूटी से रिलेटेड, वो सब आप पूछ सकते हैं. सो I think that's the end of the slide. That's all for today. Over to you, Aman sir. If you are having any questions, then ask me. Anyone? Hello, everyone. Am I audible? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good evening to all of you. I hope you all enjoyed the session of tips to crack any interview. You can tell me in which language is suitable for you to discuss if you have any doubt. Okay.
So we will start the doubt session. There are three speakers, Shubhangi ma'am, Yashika ma'am, and Aprajita ma'am. So if you have any doubt related to the topic or other than the topic, you can ask. Okay. So we will tell you the answer. Anyone? Ankita Nidan ma'am, Anuj Pal sir, Aprajita ma'am, Ashay sir, Avinash Uh, ma'am, Good afternoon. So Avinash may sir. if Good afternoon, sir. so like may I ask questions if possible? Yeah, sure. Right now our placements are going on. I am pursuing right now PGD. I mean in data analytics and IT. So from the interviewer's perspective, what are the expectations from us? Like though there will be like different multiple job roles based on the company's requirement, but like what are the basic expectations from the recruiter to be get from the students who are pursuing PGDM and data analytics and going for the interview in Centurion? Sir, may I answer? Yeah, ma'am. Yes. Sir, the whole point is this the interview sees that you must exuberate confidence, your presence of mind, your communication skills. These are very important things which any interview sees in a candidate on the face of it. Firstly, on the first impression, he sees your confidence, your communication skills, and your all the things whatever I have elaborated. And so one more thing, as you said that you have done the PGDM, so you are the student of management, so you have the basic knowledge of management as well. So one of the most important thing they can ask, how can you relate the management to the data analytics? How can you work with collaborating them? So you have to know the basic knowledge about the data analytics as well and basic rules of the management. So I hope you understand that. So can I add one more point? Yeah, ma'am. As you said, you are a student of data analytics, so you must be doing some work on Excel dashboard. So like you must have done courses on data analytics and financial modeling. Like these certificates are there in your resume, so you must know all these. You must carry the knowledge of Excel, of dashboard, and uh, all the certificates you have shown in your resume. You must know all these information, so that if the interviewer asks you, so you must be clear about your about the things you have learned. So that's that. I hope you're clear, sir. So Okay, sir. Is there anyone? Any doubt related to the topic other than that you can ask about the company and anything else if you have any doubt? Okay. So we will end up the session. Over to you, Pankti ma'am. Are you there, Pankti ma'am? Yes, sir. Okay. Okay, thank you everyone for joining with us with the lovely workshop. I guess you must have get the informative workshop. So thank you everyone, and let's you can leave now. Ma'am, feedback form. Yeah, Aman sir. Yeah, we will share the feedback form in the group. So after the 15 minutes after the end of the session, okay. We Okay, will sir. share the Thank you. okay. Thank you everyone. You can leave now.
You all may leave. If you have any doubts, so you can stay there. Otherwise, you may leave. Thank you for joining us. Komal ma'am, you can leave.